Good morning, dear students. Now we will continue our first chapter from the headline New and Old Terminologies. Page number 3. I have already explained you about two maps in first video. There were lots of changes in the year 1154 to 1720. As we know, changes come due to many situations. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time. बहुत बातों को समझकर देखकर हिस्टोरियंस इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक समय से दूसरे समय तक पहुंचने में कितनी परिस्थितियों की वजह से चेंजेस हैं। एक ही चेंज कैसे होता है? एक ही वस्तु में चेंज किस तरह से आया? एक ही चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम उसमें चेंज टर्म वाइज चेंज कैसे हो जाते हैं? द डिफरेंस नॉट ओनली इन ग्रामर एंड वोकेबलरी, उनके मीनिंग और वर्ड्स में भी कैसे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बाय टाइम कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें हमें इसमें पता चली। नाउ टर्मिनोलॉजीज पुराने समय में अलग होती थी, फिर चेंज हो जाती थी। एक समय में कैसी थी, दूसरे समय तक पहुंचने में उनके कंटेक्स्ट, लैंग्वेज, वर्ड्स में चेंजेस कैसे हो जाता है, ये सब चीज़ें हिस्टोरियंस पता करते हैं और हमें जानने को मिलती है। जैसे कि मिडवेल पीरियड में जो पर्शियन था वो, और उसके बाद मॉडर्न पर्शियन, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला। Records exist in a variety of languages which have changed over the period. The term Hindustan, for example, today we understand it as India, the modern nation state. But the term Hindustan was used by Minaz e Siraj, a chronicler who wrote in Persian in the 13th century, which meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. It was used in a political sense for lands forming the parts of the area of Delhi Sultanate. मिनाज ए सिराज, इन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा एंड यमुना के बीच के लैंड को शो करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड। In the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinents. बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड ज्योग्राफी में फोना एंड फ्लोरा और कल्चर और उस रहने वाले लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर अमीर खुसरो ऑल्सो यूज द टर्म हिंद इन द 14th century. The idea of a geographical and cultural entity like India did exist, but the term Hindustan did not carry the political and national meanings like what we use now for India. अमीर खुसरो, इन्होंने भी यूज़ किया था हिंद वर्ड को जोग्राफिकल एंड कल्चर वे में, लेकिन आज जो हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं भारत को शो करने के लिए, ये किसी ने भी यूज़ नहीं किया था।
Historians today have to be careful about the terms they use speaking they meant different things in the past. आज जो हिस्टोरियन वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ड कोई भी वर्ड जो पहले यूज़ हुए थे और आज यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ही चेंज हो गए हैं. एक ही वर्ड को डिफरेंट मीनिंग में शो किया जा रहा है. जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म द फॉरनर. फॉरनर वर्ड को हम अगर लेते हैं, फॉरनर वर्ड, it is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was an stranger who appeared, say, in a given village. The word foreigner is used to mean someone who is not an Indian, but in the medieval period, it was used for a person who was not a part of a particular society or culture. Synonymous words used for a foreigner are परदेसी और अजनबी respectively. foreigner word के लिए अजनबी और परदेसी यूज़ किया गया था. उस समय foreigner word किस वे में यूज़ करते थे? A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. उस समय फॉरनर वर्ड्स किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता था, जबकि आज हम फॉरनर वर्ड्स किस लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे भारत से बाहर लोग रहते हैं उन लोगों को हम फॉरनर कहते हैं. इस तरह से बहुत से वर्ड के समय समय पर मीनिंग चेंज हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. 700 and 1750 के बीच के पार्ट को हम जानेंगे और पढ़ेंगे. हमारे इसमें बहुत से हिस्टोरियंस के सोर्सेज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम पहले किस तरह की चीज़ें यूज़ की थी और अभी और एक ही टर्म में किस तरह से चेंजेस आए. हिस्ट्री के बारे में हम किस तरह से पता चलता है? कॉइन्स के रूप में, इंस्क्रिप्शंस के रूप में, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल्स रिकॉर्ड के जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें पता चलता है कि उस समय की हिस्ट्री कैसी थी. हिस्टोरियन यूज मैनी अवेलेबल सोर्सेज टू स्टडी एंड एनालाइज द पास्ट इवेंट्स. अमॉन्ग दीज द कॉमन सोर्सेज आर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड. मैंने आपको बताया है कि किस किन चीज़ों से हमें कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और इसके इन जो टर्म्स हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, इनका मैं आपको मीनिंग भी आगे बताऊँगी. So there was dramatic increase in the variety of textual records during the period between 700 to 750. Paper became widely available and cheaper. पेपर उस समय मिलते भी थे हमें, लेकिन वो थोड़े चीप होते थे. आज के जैसे हमारे बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी वैरायटी के नहीं होते थे. और पेपर किस लिए यूज़ किए जाते थे? वो paper was used to in the writing of the holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of sons, petitions and judicial records and the registers of accounts and taxes. हमारे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक होती थी, इम्पोर्टेंट सोर्सेस होते थे, उसमें हमें बहुत डिटेल पता चलता था. उसमें इसके अलावा हमें प्लेसेस के बारे में पता चलता था, जैसे कि वहाँ के उस समय रूलर्स कैसे थे, वो कैसा उनका रूल था. लेटर्स वगैरह जो संत वगैरह थे, टेक्निक उनकी कैसी थी.
फिर उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं और जिसमें हमें डिटेल पता चलता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें बहुत ही डिटेल पता चलता है और उससे मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. Archives क्या होते हैं? प्लेस होते हैं where documents and manuscripts are stored. जहाँ पर कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स और दूसरे इम्पॉर्टेंट थिंग्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें रखते हैं, वो आर्चिव्स कहलाते हैं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। समय समय पर ये मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ किए जाते थे और हिस्टोरियंस के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होते थे, लेकिन इनके जो टर्म में यूज़ चेंजमेंट होता था उससे पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, हिस्टोरियंस के लिए भी और दूसरे पर्सन्स के लिए भी। तो ये हमारी डिटेल्स जो हमें बताते हैं वो हमारे सोर्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और हमें जहाँ से ये मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं वो हैं आर्चिव्स, लाइब्रेरीज़ हैं, और हिस्टोरियन इन सभी डिटेल्स को देख के टाइम टू टाइम उनको पढ़कर अपने इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करते हैं कि हमें एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बारे में अगर हमें देखना है तो वो हमें किस तरह से पता चलता है। सारे सोर्सेस को कलेक्ट करके वो उनको रीड करके और समझकर अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। ओके, थैंक यू।